فیلڈ مارشل نے بدقسمتی سے متعلق اہم سطح کے اجلاس میں شرکت کی. اس حوالے سے ان کی گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس فرض کی ادائیگی میں شہادت کا جام نوش کیا. یہ پاکستانی فوج کے دلیر افسر اور جوان آئے دن یہ عظیم قربانیاں وطن کی خاطر، وطن میں امن قائم کرنے کی خاطر، اور جو فتنہ خوارج ہے، جو دہشت گرد ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے دن رات یہ قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن اندازہ کریں کہ ان کے والدین، ان کے بھائی بہن، ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہو جو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. اور یہ وہ دہشت گرد ہیں جو ان کو شہید کر کے پھر کسی گھر میں جا کے پناہ لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ وہ کبھی عمل ہے، یہ وہ گھناؤنا کردار ہے جس کا خاتمہ کرنے کا وقت آ چکا ہے. افغانستان سے یہ دہشت گرد پاکستان آتے ہیں اور TTP کے ساتھ مل کر یہ خوارج ہمارے فوجیوں کو، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو، عام شہریوں کو شہید کر رہے ہیں. میں آج افغانستان کی حکومت کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ دو چیزوں سے ایک کا انتخاب کریں، یا پاکستان کے ساتھ صحیح ایک دل کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا، ان کی پشت پناہی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں. پر انشاءاللہ افواج پاکستان، جوان، افسر اور فیلڈ مارشل کی سربراہی میں انشاءاللہ ہر صورت میں ان دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا. اس کے بغیر یہ قوم، یہ فوج، یہ چین سے نہیں بیٹھے. اس حوالے سے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں انتظامی سیاسی فیصلے کرنے ہوں تاکہ پاکستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جو بھی ہمیں ایکشن لینے ہیں وہ وقت کی عام ترین ضرورت ہے. اور پوری قوم پکار کر یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آئے دن کو یہ جو جنازے اٹھ رہے ہیں ہماری افواج کے جوان اٹھ رہے ہیں، یہ دیکھتی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، نہ ان کا دل ہے کہ اس کو اس صدمے کا روز برداشت کریں. لہٰذا وہ پکار کر یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ اقدامات فل فور اٹھائے جائیں جس سے کہ افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کی قربانیاں انشاءاللہ رنگ لائیں گی اور اس میں ملک کے اندر امن قائم ہوگا. میں نے آج شپا سالار سے اور دوسرے پرو کمانڈر پشاور سے اور دوسرے جو یہاں پر موجود تھے افسران، میں نے ان سے گفتگو کی ہے تفصیلی، اور اس کے لیے بہت جلد میں ایک منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں. کیونکہ ملک میں امن ہوگا، ترقی ہوگی، ملک میں امن ہوگا، خوشحالی ہوگی. اور اگر امن تباہ ہو گیا خدا نخواستہ تو نہ پھر ترقی نہ خوشحالی کسی کام کی نہیں ہوگی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر نہ صرف ان شہداء قربانیوں کی ہمیں اس کا لاج رکھنا ہے، اور وہ ان کی قبروں سے روئیں وہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم نے قربانی دی ہے امن قائم کرنے کے لیے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اس امن کو قائم کرنے کے لیے جو کچھ آپ سے بنتا ہے وہ کریں، اور انشاءاللہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم مل کر یہ فیصلے کریں گے. اور جلد میں کابینہ کا اجلاس بلا کر ان فیصلوں کو لے کر جاؤں گا. کابینہ اس کے اوپر بحث کرے گی اور فیصلہ کر کے اس کے اوپر فل فور عمل کریں گے. ناظرین، وزیر اعظم
और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने बनू का दौरा किया है और इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशत गर्दों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बनू में दहशत गर्दी से मुतालिक अहम इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत भी की। काबुल को वाज़े पैगाम देते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशत गर्द अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे हैं, अफगान बाशिंदे दहशत गर्दी में मुलविस हैं। बनू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दहशत गर्दी से मुतालिक जायज़ा इजलास में शिरकत की। जनूबी वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। मुल्क में अमन होगा तो तरक्की और खुशहाली होगी। हमें शहदा की कुर्बानियों की लाज रखना होगी। मुल्क को कौम के बेहतरीन मफाद में हम मिलकर फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बनू में दहशत गर्दी से मुतालिक अहम इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर नेक नियति से पाकिस्तान से ताल्लुकात चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अफगान हुकूमत को वाज़ेह कहते हैं कि दहशत गर्दी या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करें। फील्ड मार्शल की क़यादत में हम हर सूरत दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के अहम दौरे से मुतालिक तफसील जियो न्यूज़ आपको बता रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बनू में दहशत गर्दी से मुतालिक अहम इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान को वाज़ेह कर दिया है कि खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानियाँ रद्द करती है। दहशत गर्दी के वाक़यात में अफ़गान बाशिंदे मुलविस हैं। दहशत गर्द अफ़गानिस्तान से आकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। दहशत गर्दों को भरपूर जवाब देने का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसमें किसी किस्म का कोई भी अबहम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की और CMH बनू में ज़ख्मियों की अयादत भी की। कोर कमांडर पेशावर ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई में फितनल खवारिज के 35 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 12 बहादुर जवान भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों को बाजोड़ और वज़ीरिस्तान में 10 से 13 सितंबर के दौरान कार्रवाइयों में हलाक किया गया। बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 22 खवारिज मारे गए। वज़ीरिस्तान में की गई एक और कार्रवाई में 13 मजीद खवारिज मारे गए। वज़ीर आज़म ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त ऑपरेशन करके ख़वारिजी दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया है। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल की बात करेंगे। पंजाब में शुजाबाद, रहीम यार खान, अहमदपुर शरकिया, राजनपुर और विहाड़ी के सैकड़ों देहात पानी में डूब गए हैं। शुजाबाद में सैलाबी रेले से मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ रही हैं। बस्ती धोंदू के बंद में शिगाफ बढ़कर 240 फुट हो गया है। जलालपुर पीरवाला में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम से। जौदत, बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अब तक लोगों को मदद की ज़रूरत है। क्या किया जा रहा है इस सिलसिले में, और जिन जगहों पर जो आबादियाँ, जो इलाके पानी की जद में है, वहाँ पर क्या हालात है इस वक्त? जी, मैं इस वक्त मुल्तान के इलाके शुजाबाद में शुजाबाद बंद के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी मदद जो है वो नहीं पहुँच सकी। इस वक्त सरकारी जो कैंप से लगाए गए हैं वो मुख्तलिफ लोगों को दिए भी गए हैं और बहुत सारे लोगों से मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि 2 दिन पहले जो मौजा धोंदू में जो शिगाफ पड़ा था उसकी वजह से उनकी मुतासरीन की तादाद जो है शुजाबाद में बढ़ती जा रही है। इस वक्त अगर बात करते चले, धोंदू से मुल्हका जो मौजात हैं वो इस वक्त ज़ेरियाब आ चुके हैं और तकरीबन 3 फुट तक पानी जो है वहाँ पे जमा हो चुका है। इस वक्त भी जो शुजाबाद बंद है, यहाँ पे बड़ी तादाद में मुतासरीन जो है वो मौजूद हैं। अपने अहले खाना के हमरा यहाँ पे मौजूद हैं, उनका सामान भी जो है वो यहाँ पे है। कुछ यहाँ पे हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। आपका क्या सूरत हाल रही है और यहाँ पे किस तरह की मदद पहुँची है? यहाँ पे कोई मदद नहीं पहुँची। 2 दिन से बांध टूटा है। यहाँ से किसी ने भी नहीं पूछा। जो भी यहाँ से गुजर रहे हैं, जो भी लोग हैं, वो तमाशा ऐसे बना रहे हैं जो आवाम का तमाशा बनाते हैं। इस तरफ भी हमारे ज़मीनें हैं, काश्तकारी है, वो भी डूब गई है। इस तरफ घर हैं बन के, दूसरी तरफ वो घर सैलाब में आकर गिर गए हैं। यहाँ पे ये बात भी ज़ाहिर है मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि लोगों की जो इज़्ज़त नफ्स है वो भी मजरूह हो रही है कि उनके घर यहाँ पे मौजूद हैं, साथ ही वो खेती बाड़ी भी करते हैं। सैलाब आने की वजह से उनको जो है बंद पे आके बैठना पड़ रहा है। उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हमें अच्छा नहीं लगता बार बार लोगों के सामने ये बात करना। मौजूद उनसे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, हमारे बच्चे जो हैं खुले आसमान के नीचे हैं, हमारे घर भी गिर चुके हैं और हमारी जो काश्त है वो सारी ख़त्म हो गई है। अब इधर कोई ना खेमा है ना कुछ है,
हम ऐसे ही बैठे हैं। जी बिल्कुल। अभी भी जो सरकारी मदद है वो मुल्तान के इलाके शुजाबाद में बंद पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनको नहीं पहुंच सकी है। यहाँ पे शिकायत की जा रही है कि कैंप्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, लोगों को खाना नहीं दिया जा रहा और कैंप्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अब चूँकि रात हो चुकी है और ज़ाहिर है मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई है, तो मॉस्किटो नेट्स का भी बहुत ज़्यादा मसला है। यहाँ पे लोगों को छोटे बच्चे जो हैं। मुल्तान को दरिया चनाब से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। मोहम्मद वाला और शेरशाह की दर्जनों बस्तियाँ अभी तक गहरे पानी में डूबी हुई हैं। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में लाखों लोग बेघर हैं। इस बारे में आपको मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सालेहा मलिक। मुल्तान की तहसील शुजाबाद और जलालपुर में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। लाखों लोग बेसरो सामानी के आलम में अपने घर बार छोड़कर फ्लड बंद पर रहने पर मजबूर हैं। शुजाबाद में बस्ती धोंदू का फ्लड बंद टूटने से पड़ने वाला शगाफ 220 फुट चौड़ा हो गया है, जिससे बंगाला मोड़, नवा शहर, बस्ती आलमवाला, मोजा गर्देसपुर और रुकन हट्टी समेत कई देहात ज़ेरे अब हैं। अब शुजाबाद शहर को बचाने के लिए बख्तूवा नहर वाले बंद मजबूत और ऊंचा किया जा रहा है। इसी तरह जलालपुर पीरवाला में भी शाहपुर, बेट कैसर, जहांपुर, कादिरपुर साले समेत 64 मवाज़ात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। हमारा सामान भी अंदर था, हम सामान भी नहीं निकाल सके, इतना पानी आ गया है जो तकरीबन यहाँ जो है ना 15-20 फुट पानी होता है। हमारे सारे घर ज़ेरे आब आ चुके हैं, ना हमें कोई खुराक दी जाती है, ना खाने का इंतज़ाम हैं हमारे पास इंतज़ामिया की तरफ से, और ना ही हमें रिहाइश के लिए कोई खेमे दिए गए हैं। मुल्तान में शेरशाह और हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर पानी की सतह में कुछ कमी वाक़या होना शुरू हो गई है। इंतज़ामिया के मुताबिक हेड मोहम्मद वाला में पानी की सतह 442 फुट से कम होकर 439 फुट पर आ गई है। यहाँ पर 3 फुट तक पानी में कमी वाक़या हुई है। इसी तरह शेरशाह के मुकाम पर भी सैलाबी पानी की सतह में 3 फुट तक कमी होकर 3.90 पर आ गई है। मुल्तान के 20 से ज़ायद मवाज़ात शदीद मुतासिर हैं, जहाँ अब भी सैलाबी पानी की तबाहकारियाँ जारी हैं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक सैलाब में घिरे अफराद को कश्तियों के ज़रिए ज़रूरी अशिया और राशन फराहम किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ सालेहा मलिक, जियो न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में सैलाब के बायस खैमों में मौजूद लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों ने जकड़ लिया है, जहाँ पर मेडिकल कैंप भी मौजूद है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद इमरान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौजा ताहिरपुर कोटा में लगाए जाने वाले एक फ्लड रिलीफ कैंप में, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से लोगों की सेहत के हवाले से एक तिबी कैंप लगाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद है। इस बारे में जानते हैं कि किस किस्म की बीमारियाँ आजकल फैल रही हैं और हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। हमारे पास मल्टीपल पेशेंट्स आ रहे हैं, ज़्यादा गैस्ट्रो के केसेस हैं, बड़े एलर्जी के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेडिसन अप टू डेट है, कंप्लीट है। साथ में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्यूनाइजेशन का भी सेटअप मौजूद है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया, इलाके का फ़ज़ाई जायज़ा लिया और मुतासरीन से मुलाकात भी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आवाम को बार बार आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तेज़ की जाए। फील्ड मार्शल ने मुतासरीन को दोबारा आबादकारी और बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई और अवामी फलाह बहबूद के लिए तमाम इक़दाम की हिमायत से मुतालिक पाक फ़ौज का गैर मुतसलसल आज़्म दोहराया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन जारी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिचुआन के पार्टी सेक्रेटरी की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इशाया दिया गया। इशाये में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। सदर आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान चीन दोस्ती और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म दोहराया। चीन ने 2008 में सिचुआन ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तान की मदद पर इज़हार तशक्कुर किया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने मुजफ्फरगढ़ में सिरपुर और मौज़ा का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन में राशन और टेंट तकसीम किए। सैलाब मुतासरीन ने मरियम औरंगज़ेब को रिलीफ सरगर्मी और रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ की जा रही हैं। चंद्रबान फ्लड बंद की करप्शन में मुलविस इरिगेशन हुकाम के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मौके पर सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सुहेब अहमद भी मौजूद थे। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने वज़ीराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। PTI रहनुमा ने सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़ी है। सैलाब मुतासरीन को राशन और मवेशियों के लिए चारा फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि हम झूठ पर मबनी निज़ाम और मसनूई इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। कराची में BRT ग्रीन लाइन की तोसी का काम जारी है। शहर के आम शाहराह एम ए जिन्ना रोड पर तरक्याती काम की वजह से
ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा हो गया है। इस बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जमार जोखिया। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एम ए जिन्ना रोड पर, जहाँ BRT ग्रीन लाइन की एक्सटेंशन का काम जारी है। नुमाइश बस स्टॉप से लेकर म्यूनसिपल पार्क जामा क्लॉथ मार्केट तक इसको तोसी दी जा रही है। 1.8 किलोमीटर तक इस कॉरिडोर को बढ़ाया जा रहा है, जो कि तकरीबन 5.5 अरब रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है, जिसमें 3 स्टेशंस भी बनेंगे। इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल आपको बताएं तो ट्रैफिक का शदीद दबाव है। कराची की अहम तरीन शाहराहों में से एक शाहराह एम ए जिन्ना रोड है, जिस पर वैसे ही ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। BRT ग्रीन लाइन की कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर सड़क तंग हो गई है, जिस वजह से ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया है। PIDCL इंतज़ामिया से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था साल तक इसको मुकम्मल कर लेंगे, और तब तक सूरत हाल तो यही लग रही है कि ये जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासर रहेगी। लोगों की आमदोरफ्त में यहाँ पर जो है मसाइल रहेंगे, और इस BRT के बनने के बाद भी जो ये सड़क तंग हो जाएगी तो लोगों की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी नहीं आएगी। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी के साथ साथ फ़लस्तीन को कुदरती ज़खायर से भी महरूम कर रहा है। तुर्क मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाली गजा जंग के आगाज़ से अब तक इसराइल फ़लस्तीन की समुद्री हदूद में गैर ज़खायर की दरियात के लिए 6 इसराइली और गैर मुल्की कंपनियों को 12 लाइसेंस जारी कर चुका है, जो बैन अल-अक़वामी कानून और फ़लस्तीनी हदूद से मुतालिक 1995 के ओस्लो मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। इंसानी हकूक़ तंजीमों ने मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन के कुदरती वसाइल पर डाका डालने की कोशिशों को रोकने के लिए इसराइली और गैर मुल्की कंपनियों को लाइसेंस का इजरा मुअत्तल किया जाए। पेशावर के इलाके सदर में पुरानी इमारत गिर गई, मलबे तले 5 अफराद दब गए। रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंची हैं। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर, बताइएगा कैसे इमारत गिरी और क्या रेस्क्यू की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है? देखिए, सदर बाजार है, काफ़ी एक अहम शाहराह है, और यहाँ पर जो है एक पुरानी बिल्डिंग है, पुराना एक बिल्डिंग है, और उसका एक हिस्सा जो है वो गिर चुका है, और रेस्क्यू 1122 की जो टीमें हैं वो इस वक्त पहुंच चुकी है। तकरीबन 11 एहलकार जो है वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, और रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जो है इसमें 5 अफराद दबे थे मलबे तले, जिनमें से 3 को जो है वो 2 अफराद को जो है वो निकाला गया, जबकि 3 अफराद को निकालने के लिए जो है अभी तक सर्विसेज जो है वो रेस्क्यू 1122 की जारी है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जो है जख्मियों को तबी इमदाद के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, और 2 जो के जख्मी को निकाला गया है उनकी हालत भी जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू जो है वो दीगर जो लापता अफराद है उनकी तलाश के लिए इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है। रेस्क्यू के साथ साथ दीगर जो मकामी लोग हैं वो भी इस ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 की हेल्प कर रहे हैं। पुलिस जो है, पुलिस की टीमें भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। जिस तरह मैंने बोला कि रेस्क्यू का अमल जारी है। शुक्रिया आपका अबू बकर सिद्दीक, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे।